Okay, friends, so welcome back to CR classes, and today we are going to cover part 2 of climate. So let us look at the topics which we have already covered and which we are going to cover in this particular lecture. So these are the topics which we are covering in this particular lecture, and in our first part we have already covered introduction and regional variations. Now in second part of this lecture we will cover factors affecting the climate of area. So let us quickly look at what are the factors which are affecting the climate of India. So these are the factors: Himalayas, the monsoon winds, latitude, varied relief, altitude, distance from the sea, western disturbances, jet stream and El Nino effect. So these are the 9 factors which we will cover in this particular lecture, और हम लोग ये देखेंगे कि how these factors affect the climate of India. ठीक है, so let us look at the first factor, Himalayas. So how Himalayas affect the climate of India? So basically they form a climatic barrier separating Indian subcontinent from the rest of Asia. So if we look at the position of Himalaya with respect to India, we will observe that Himalaya act as a climatic barrier and it basically separates Indian subcontinent from the rest of Asia. Now what is the importance of this? Since it acts as a climatic barrier, they prevent the cold Siberian winds from entering Indian region. ठीक है, सो ये कोल्ड साइबेरियन विंड्स जो रशिया से आने वाले कोल्ड साइबेरियन विंड्स हैं उनको वो इंडियन रीजन में आने से रोकता है. अगर ये कोल्ड साइबेरियन विंड्स इंडिया में आ जाते हैं तो फिर इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बेसिकली विंटर सीजन में बर्फ से ढका हुआ होता. बट ऐसा होता नहीं है, और ऐसा किस लिए नहीं होता है? बिकॉज देयर इज हिमालय विच इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स. Then they also prevent the moisture laden south west monsoon winds to shed rainfall in India, or else India would be a dry region. So Himalaya जो है वो they prevent the southwest monsoon winds to go out of India. ठीक है, सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेनफॉल, तो ये इस साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को हिमालयस इंडिया से बाहर जाने से रोकता है. ठीक है, तो एक तरफ तो वो साइबेरियन विंड्स को इंडिया में आने से रोक रहा है और दूसरी तरफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को इंडिया से बाहर जाने से रोकता है. सो दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. Then look at this map. So अभी हम लोगों ने जो थियरी में पढ़ा how Himalayas affect the climate of India, उसको अब हम लोग मैप के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे. So this circle represents the Siberian region of Russia, and these are the cold waves which are coming from Siberia, and here is the Himalaya which is protecting India from these cold Siberian winds. So basically they act as a barrier, they prevent these cold winds to come into India. ठीक है, then look at this map. इस मैप में हम लोग ये शो करने का कोशिश कर रहे हैं कि how Himalayas are preventing southwest monsoon winds to go out of India. ठीक है, so these are southwest monsoon winds which are moving towards northwestern India, और ये नॉर्दर्न पार्ट की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं. बट देर इज़ हिमालय एंड दे आर बेसिकली एक्टिंग एज अ बैरियर एंड दे आर नॉट अलाउइंग दिस साउथ वेस्ट मानसून विंड्स टू गो आउट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो हियर यू कैन सी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, दिस इज ऑल्सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच का ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है. सो हिमालयाज आर बेसिकली प्रिवेंटिंग देम टू गो आउट ऑफ इंडिया, एंड सिंस इट एक्ट एज अ बैरियर, और जब ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जाकर हिमालयन माउंटेन से स्ट्राइक करते हैं, एंड सिंस दे हैव मॉइस्चर, ठीक है, सो these winds carry moisture from Arabian Sea and Bay of Bengal, and when they strike the Himalayan mountain they bring rainfall to this area. ठीक है, so let's look at the second factor which affects the climate of India, which is the monsoon winds, and this is the most important factor. ठीक है, बट उसके पहले हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए कि विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. ठीक है, तो विंड का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है. ठीक है, तो जिस एरिया में हाई प्रेशर डेवलप हुआ है वहाँ से विंड राइज होगा, और जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ है वहाँ विंड
उस तरफ ब्लो करेगा, ठीक है। सो दिस डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मानसून विंड्स आर कंसर्न। नाउ मानसून विंड्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। नाउ साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में हम लोग डिटेल्स में आने वाले अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट हियर वी विल लुक एट some of the features of southwest monsoon and northwest monsoon winds. So these are the features of southwest monsoon winds. So they blow during summer into peninsular India towards low pressure system of northwest India. तो ये बेसिकली समर में ब्लो करते हैं एंड दे ब्लो इनटू दी पेनिनसुलर इंडिया। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, जो सदर्न ट्रायंगुलर पार्ट है विच इज़ बॉर्डर्ड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर, वो उस साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो उस एरिया में ब्लो करते हैं टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। और उस एरिया में जो पेनिनसुला इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। वो कैसे सिस्टम डेवलप होता है वी विल सी, हमारे आने वाले लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देन दे ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, मैंने पहले भी आपको बताया। They bring rain to the entire subcontinent. So the southwest monsoon wind is very very important. Why? Because they bring rain to the entire subcontinent, ठीक है। And this rain is very important because as we know India is a agricultural country, और agriculture के लिए हमारे country में rain बहुत important है, ठीक है। And India depends on its rainfall for southwest monsoon winds. They start retreating by October and brings rain in eastern coastal region. So they start blowing during summer season and they start retreating by October, ठीक है। अक्टूबर मंथ तक ये रिट्रीट का मतलब होता है वापस ये आने लगते हैं, यानी समर टाइम ये अरेबियन सी से राइज होते हैं और इंडिया की तरफ आते हैं, और अक्टूबर मंथ तक दे स्टार्ट रिट्रीटिंग, इंडिया से फिर ये विंड जो है वो वापस आने लगते हैं। एंड व्हेन दे रिट्रीट दे ब्रिंग सम रेनफॉल टू द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया. So these are the features of southwest monsoon winds. Now let us look at some of the features of northeast monsoon winds. So northeast monsoon winds blow during winter from Bay of Bengal. They are cold and dry winds. So since they are cold and dry winds, they do not carry much moisture, but they whatever moisture they carry from the Bay of Bengal, they bring rainfall to तमिलनाडु बिकॉज ऑफ दैट इन विंटर्स, ठीक है। तो जो भी वो मॉइस्चर कैरी करते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया से, जब वो ब्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल के ऊपर से वो ब्लो करते हुए तमिलनाडु में आते हैं, दे ब्रिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु इन विंटर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से काफ़ी ज़्यादा बारिश हमारे कंट्री में नहीं होता, सिर्फ एक तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ये बारिश होता है ना। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स है, इनका नाम साउथ वेस्ट, तो इसका साउथ वेस्ट मानसून विंड नाम इसलिए रखा गया बिकॉज दे अराइज फ्रॉम साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून नाम इसलिए है बिकॉज दे अराइज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन सो अभी जो चीज़ हम लोगों ने थियरी में पढ़ा, लेट अस लुक एट दिस मैप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज़ द मैप ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड यू कैन सी के साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है अरेबियन सी से भी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है, दोनों साइड से दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया. एंड दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स अराइज फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर ब्लोइंग ओवर बे ऑफ बंगाल एंड दे कैरी सम मॉइस्चर एंड दे ब्रिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु इन विंटर सीजन, ठीक है. Now our next factor affecting climate of India will be latitude, ठीक है. So how latitudes affect the climate of India? So the Indian subcontinent is divided into parts, two parts by the Tropic of Cancer. So if we look at Tropic of Cancer, it almost passes through the middle of India and it divides India into two parts, ठीक है, northern part and southern part. The northern portion lies in the temperate zone or subtropical zone and the southern portion lies in the tropical zone. So since Tropic of Cancer passes through middle of India, so इस Tropic of Cancer का जो northern part होता है, ठीक है, northern part lies in the temperate zone
इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है इट बेसिकली लाइज इन द टेम्परेट जोन, और इंडिया का जो सदर्न पार्ट होगा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले लाइन से जो नीचे वाला पोर्शन होगा, सदर्न पार्ट होगा, इट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन. सो सेम कंट्री बट इट लाइज इन द टू डिफरेंट हीट जोन्स. एक है टेम्परेट जोन में यानी जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट, और जो सदर्न पार्ट है इट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन. The warm temperate climate of the northern zone gives it cold winter season and hot summer season. So जो northern part है वहाँ पे climate कुछ ऐसा होता है कि winter में काफ़ी ज़्यादा ठंड होगा और summer season में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है. And it happens because of it lies in the temperate zone. But in southern part यानी tropic of cancer के नीचे वाला जो part है there it is warmer than the north and does not have a clear cut winter season. So southern part में एक clear cut winter season नहीं होता and it is generally warmer than the northern part of India, ठीक है. So let us look at this map and try to understand what is the effect of latitude. So अभी हम लोगों ने theory में पढ़ा, now अब हम लोग उसको map से समझने का कोशिश करते हैं. So here you can see our country India. And this line is basically the Tropic of Cancer, 23.5 degree north, ठीक है. And we can see that this line divides India into northern and southern part, and this northern part lies in the temperate zone यानी sub tropical zone, and this southern part lies in the tropical zone, ठीक है. This portion is tropical portion from equator. This line is equator. From equator to this Tropic of Cancer, this whole portion is called tropical zone, and above Tropic of Cancer, this is called temperate zone or subtropical zone. So in northern part of India lies in subtropical zone and southern part of India lies in the tropical zone, ठीक है. Now I think it is clear to all of you. Now our fourth factor will be varied relief. So in India we can see many relief features, ठीक है. But before discussing varied relief and its effect on the climate of India, we will have to distinguish between what do we mean by windward side and what do we mean by leeward side यानी rain shadow area, ठीक है. ये बहुत important है. So windward side क्या होता है, leeward side क्या होता है और दोनों में difference क्या है. So let us look at this picture and try to understand this concept. So this is sea level, ठीक है, और suppose this is a mountain and this area has been named as windward side and this area is named leeward side. Now there is a reason behind it. इसको windward side क्यों कहा जाता है? So there is sea and the winds are moving from this area, ठीक है, this side the wind is moving. और जब ये सी के ऊपर से ब्लो करते हैं दे कैरी मॉइस्चर एंड व्हेन दे आर ब्लोइंग टुवर्ड्स दिस माउंटेन दे स्ट्राइक द माउंटेन, और माउंटेन के साथ स्ट्राइक होने की वजह से दे ब्रिंग रेनफॉल टू दिस एरिया, ठीक है. और जितना भी मॉइस्चर होता है इस क्लाउड का, ये सारा मॉइस्चर यहाँ पे रेनफॉल के थ्रू ये सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाता है. और तो इसके जो माउंटेन के जो वेस्टर्न साइड वाला ईस्टर्न साइड वाला एरिया है वहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होता. क्यों? बिकॉज सारा बारिश तो इसके वेस्टर्न साइड में हो गया, बिकॉज ये माउंटेन यहाँ पे था और ये विंड यहाँ से ब्लो कर रहा था और ये माउंटेन को जाके हिट करता है और सारा रेनफॉल जो है वो इसी एरिया में हो जाता है यानी वेस्टर्न साइड में हो जाता है. ईस्टर्न साइड में बारिश नहीं होता. सो जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड और रेन शैडो एरिया. रेन शैडो एरिया मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होता. So I think this distinction is clear to all of you, windward side versus leeward side और rain shadow area. This is a very important concept. ये आप लोगों को याद होना चाहिए. Now we are coming to what is the effect of varied relief on the climate of India. So Western Ghats get heavy rainfall on western side because they stand in the way of southwest monsoon winds which come from the Arabian Sea. So अगर हम लोग मैप में, इंडिया के मैप में अगर वेस्टर्न घाट्स का लोकेशन देखें तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो बेसिकली वेस्टर्न साइड साउथ वेस्टर्न साइड में है इंडिया के. तो जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया की तरफ ब्लो करता है तो ये वेस्टर्न घाट एक बैरियर का काम करता है और साउथ वेस्ट मानसून विंड उसको आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है. बेसिकली उसको
जो डेक्कन एरिया है वहाँ तक उसको पहुँचने नहीं देता, ठीक है। इसलिए सारा बारिश, ज़्यादातर बारिश जो है वो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में ही होता है, उसके ईस्टर्न साइड में बारिश नहीं होता। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा पिक्चर में कि विंडवर्ड साइड यानी वेस्टर्न साइड में बारिश हो रहा है, और ईस्टर्न साइड यानी रेन शैडो एरिया में वहाँ पे लीवर्ड साइड में बारिश नहीं हो रहा है। कुछ इसी तरीके का इफेक्ट होता है वेस्टर्न घाट्स का। तो वो जो बीच में माउंटेन था, यू कैन अज्यूम दैट माउंटेन एज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, lying between windward side and the leeward side. So on the other hand, the Deccan Plateau gets less rainfall as it lies in the rain shadow area of the Western Ghats. तो जैसा कि मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न पार्ट है यानी महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे बारिश होता है, ठीक ठाक बारिश होता है, बट जो वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न पार्ट है यानी डेक्कन प्लेटो, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाता, ठीक है। क्यों? बिकॉज वेस्टर्न घाट्स आर एक्टिंग एज अ बैरियर. Similarly, in Rajasthan, the Aravalli range is parallel to the direction of the southwest monsoon winds. तो राजस्थान में जो है केस थोड़ा डिफरेंट है. राजस्थान में एक अरावली रेंज है एंड इट इज़ बेसिकली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, यानी इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ बैरियर, ठीक है. ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के बिल्कुल पैरेलल में है. सो ये बैरियर का काम नहीं करता, और क्योंकि ये बैरियर का काम नहीं करता अरावली रेंज, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो उसको आगे बढ़ने का जगह मिल जाता है, तो वो आगे बढ़ता जाता है. इसलिए राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है. वाई? बिकॉज अरावली रेंज तो बैरियर का काम ही नहीं कर रहा. अगर अरावली रेंज बैरियर का काम करता तो ये साउथ वेस्ट विंड अरावली रेंज को हिट करता और राजस्थान में फिर बारिश होता. बट ये अरावली रेंज पैरेलल है, ठीक है. इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, सो इट इज नॉट एक्टिंग एज अ बैरियर. So it is unable to stop moisture laden winds. This makes Rajasthan a dry area. So इस मैप से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ज़्यादा. So you can see the location of Western Ghats. This is Western Ghat and this is the southwest monsoon winds, and these winds are moving towards India. तो ये Western Ghat जो है वो एक बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है, और इसको डेक्कन प्लेटो में आने से रोकता है. वही राजस्थान में क्या है? देर इज अरावली रेंज, बट दिस अरावली रेंज, लुक एट द लोकेशन ऑफ दिस अरावली रेंज, इट इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. तो ये पैरेलल होने की वजह से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को देखिए यहाँ पे ये जगह मिल गया, ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है. और ये अरावली रेंज इस विंड को रोक नहीं पाता, इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर, और जिसकी वजह से ये वाला जो राजस्थान का एरिया है यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, ठीक है. और कुछ एरिया में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होता राजस्थान के. Okay, now let us look at the other factor, altitude. So we know that there is a decrease of 1 degree Celsius of temperature for every 166 meter rise in height, ठीक है, because temperature decreases as we move to higher altitudes. तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही हम लोग 166 मीटर राइज यानी 166 मीटर हाइट पे जाते हैं, ठीक है, और जितना 166 मीटर राइज पे जाते जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. सो जैसे हम लोग 166 मीटर ऊपर जाएंगे, राइज होंगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट इन जियोग्राफी, ठीक है. सो देयरफॉर ऊटी हैज़ मच लोअर टेम्परेचर देन कोची बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड. इसी वजह से ऊटी जो कि ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है कंपैरिजन टू कोची जो कि कम हाइट पे है. Now, let us look at our next factor, distance from sea. So, how distance from sea affect the climate of India? Areas in the interiors of India have extreme type of climate or continental climate. So, ऐसे areas जो इंटीरियर में हैं, ठीक है, इंडिया के इंटीरियर्स का मतलब है कि जो सी से काफ़ी दूर पे हैं, दूरी में है, जैसे मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया. सो ऐसे एरियाज में वी विल फाइंड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट? इट मीन्स दैट इन विंटर देयर विल बी the temperature will be very low, और समर में the temperature will be very high, यानी very hot in summer and very cold in winter. This kind of climate is called continental climate and it is found in the interiors of India. But जो एरिया सी के और कोस्ट के पास होते हैं, सी कोस्ट के पास, जैसे मुंबई हो गया और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे वी विल फाइंड इक्वेबल और मैरीटाइम और मॉडरेट क्लाइमेट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मॉडरेट क्लाइमेट? मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है इट इज़ नीदर टू हॉट इन समर एंड नीदर टू कोल्ड इन विंटर, यानी एक मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ठीक है. एंड दिस मॉडरेट क्लाइमेट इज़ बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज
ठीक है, सी ब्रीज जो ब्लो करता है इस कोस्टल एरियाज में, उसके वजह से यहाँ पे ये मॉडरेट क्लाइमेट बना हुआ होता है. Now our next factor will be western disturbances. Now how does western disturbances affect the climate of India? In winter season, northern India comes under the influence of the winds and cyclones rising from Mediterranean Sea. So Mediterranean Sea से कुछ winds और cyclone rise होता है, ठीक है, जिसकी वजह से northern India का winter season काफ़ी affect होता है, ठीक है. And these cyclones bring rain to northern plains and snow in Jammu and Kashmir. और इसी cyclone की वजह से northern plains में, इंडिया के northern plains में बारिश होता है winter season में, और जम्मू और कश्मीर में snowfall होता है. So जम्मू और कश्मीर में snowfall का एक बहुत important reason है western disturbances, ठीक है. Now what are jet streams and how does it affect the climate of India? So they are basically cold fast blowing winds that develop in the upper layers of the atmosphere, ठीक है. So they are cold, एक तो ये ठंडा winds होता है, and they are fast blowing winds and they develop in the upper layers of the atmosphere. So we know that there are different layers of the atmosphere and they develop in the upper layers of the atmosphere. The westerly jet stream, so there are two kinds of jet streams. एक होता है westerly jet stream और एक होता है easterly jet stream. तो जो westerly jet stream है, यानी जो west से blow करने वाले jet streams हैं, they prevail over the North Indian plains during winter months, ठीक है. So they prevail in the northern part of India during the winter months. And the easterly jet stream control the tropical depression over India. So easterly jet stream क्या करता है? It controls the tropical depression over India. What do we mean by tropical depression? We will look at the meaning of tropical depression. एक और point हम लोग discuss कर लेते हैं पहले. So these depressions, यानी ये जो tropical depressions है, they play a significant role in the distribution of monsoon rainfall in India. तो ये जो tropical depression form हुआ, control हो रहा है because of easterly jet stream, they play a very significant role in the distribution of monsoon rainfall in India. So that is why these jet streams are also very important for monsoons in India. Now what is tropical depression? Tropical depression is basically the region of low pressure that develops into a cyclone or storm. तो ये एक low pressure region होता है जो कि cyclone और storm में जाके develop हो सकता है, ठीक है. This is what we mean by tropical depression and this is very important as far as monsoon rainfall in India is concerned. Now our last factor will be El Nino effect. Now what is El Nino? El Nino is basically a warm ocean current, ठीक है, ये एक warm ocean current है, ठीक है, which sometimes appears off the coast of Peru in South America during the month of December. So ये एक warm ocean current होता है, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, पेरू पे पर्टिकुलरली अगर बोले तो पेरू और साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये वार्म ओशन करंट फॉर्म होता है और इसी को हम लोग एल नीनो करंट बोलते हैं. एंड इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड इट इज़ नॉट अ वेरी रेगुलर फिनोमेना, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इरेगुलर फिनोमेना, हर साल नहीं होता ये, ठीक है. एंड इसका इफेक्ट क्या होता है? इट बेसिकली इंक्रीजेज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी. सो सिंस इट इज़ अ वार्म ओशन करंट इट इंक्रीजेज द सरफेस टेम्परेचर. तो इस सी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है इस वार्म ओशन करंट की वजह से एंड अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशन, जिसके वजह से जो इंडियन ओशन का जो मानसून विंड्स का मूवमेंट है वो अफेक्ट होने लगता है, ठीक है. वी विल डिस्कस कि हाउ एल नीनो affects the climate of India in our separate lecture, ठीक है. उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि एल नीनो का बेसिकली इफेक्ट होता क्या है, ठीक है. तो उसमें कुछ ग्राफिकल इमेजेस और एनिमेशन का यूज़ करके मैं आपको वो शो करने का कोशिश करूँगा कि हाउ बेसिकली एल नीनो इफेक्ट दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है. और यहाँ पे बस आप लोगों को ये जानकर रखना है कि इट इज़ बेसिकली अ वार्म ओशन करंट विच अपीयर्स इन द कोस्ट ऑफ पेरू इन साउथ अमेरिका ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड इट बेसिकली इंक्रीजेज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी विच अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मानसून विंड्स इन इंडियन ओशन, जिसकी वजह से इट कॉजेज ड्रॉट लाइक सिचुएशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. सो जब इंडियन ओशन में जो मानसून विंड्स का मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है, अफेक्ट होने की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो
जो इंडिया की तरफ जाना चाहिए उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो वो विंड्स इंडिया की तरफ नहीं जा पाएगा एंड उसकी वजह से फिर इंडिया में ड्रॉट जैसा सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखे का सिचुएशन हो जाएगा, यानी बारिश नहीं होगा वहाँ पे। बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। अगर हम लोग मानसून का अगर बात करें तो, रेनफॉल का अगर बात करें तो, सो अगर उस साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो इफेक्ट, तो उसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन a separate lecture on El Nino effect, ठीक है। So don't worry about that. So thank you for watching, and for more course visit our website crclasses.com. So thank you so